in middle of the jungle. Guys, AQI of here is 1. So the air is the cleanest here. This gives me a little bit of nostalgia because I used to come here in 2010. Hello guys, welcome back to my channel Gypsy Shiva, and today guys we are in Parvati Valley. Before reaching to Manali we came to Parvati Valley. Yesterday I didn't shoot the way or nothing, directly starting the video from here because for this we came for the snow. And look, all the snow capped mountains here in Pulga in Parvati Valley. There is snow and here are the kids enjoying. They are very surprised to see snow so near and they think we're gonna walk up to the snow, but I said no, we are going up to the village. Let's go. The car is perfectly parked with one stone at the back. Let's go guys. Guys, here we are in Pulga and look at the houses still. They are like made of wooden, very beautiful houses, very old houses, maintained. And we are going to this Shiva Valley cafe and it's this side, so let's go. The kids are there checking the cows. तो गाइस आज हम आ गए हैं पुलगा में. ये पुलगा जो विलेज है बरसैनी डैम के जस्ट पास में है और यहाँ आप कार लेके आ सकते हो. बस गांव से थोड़ा सा ही वॉक करना पड़ता है, 100-200 मीटर, और आप गांव में पहुँच जाते हो. तो ये पुलगा गांव का मेन टेम्पल है. Looks like it will snow. Look at that side. The clouds are almost there. I think it's snowing over there. If the clouds come till here, it will snow here also. Look at this temple. Guys, हम पुलगा पहुंच गए हैं और ये देखो guys, लग रहा है कि स्नोफॉल हो रही है जैसे. और इस तरफ देखो भाई. क्या पार्ले जी. See? This gives me a little bit of nostalgia because I used to come here in 2010, like 15 years ago, and 2008, 2009, 2010, and now it's 2025. After like how many years? Like maybe like 3 years I come back, but not over here. And the village here looks beautiful. All the wooden houses gives you a different feeling of the nature. And it's difficult to live here, if you can see. Very difficult to live here. Only the people from here can live here because they work really hard in everyday life and they actually work, not like us sitting on the table and using our laptops. No, they actually physically work. Even in Mexico where we were living, the people used to work very hard, but here the life is more difficult because 3 months, 2 months, when it starts to snow, you can see the snow is right here. The life becomes very tough because it's very cold. The kids are trying to learn how to walk on the ice. You need to walk very slow, Jenny, because you can slip, okay? Walk very slow. Jenny, ¿cómo tú sientes? Sí. Sí, eso línea no. Ten cuidado con eso línea. If you can see, the cows are integral part of the household here in villages, and everywhere you will find cows in the houses, and that's why we treat them like mother. So these are the small cows because these are the mountain cows. They have to walk a lot, stress a lot their body. So in Haryana, in my state, the cows are more tall, but here the cows are more small. When here is one small house, you can see. Here is all the wood store and the houses. Walk in the village in Parvati Valley. This is the beauty of India. Now, can you see the color of the water? What they show you is completely different from the reality. And look at these snow-capped mountains over there. If you go, here is the Khiranga trek. And you can go like 10 kilometers up from here and you will reach Khiranga, and it looks beautiful. Look the color of the water. It looks so beautiful. And they have also made road till there, so you can take your car till there. It's very good, and then you can just go ahead. But I don't know where is the way to go because
Looks like it's still under construction, but yeah guys. And here is a car going strong, going strong, going strong. HR26. And how it looks from here, looks pretty good. Now we are going back to the main place where we are staying. Coming back to Kasol, we just saw this massive machine moving rocks. I don't know for what, but yeah, it's working very very hard. You can see it's moving big rocks, guys. That one that it's trying to move is very big, but it's from there. And it is a very big machine. In video I cannot show you, but yeah, it's a very very big rock. Just throwing the rocks here and there. And one good news, guys, there is the other way open and you can take your car to the other side of Kasol. That's something new. And obviously the river flow of Parvati river is very less now because of the dam. So because of the dam they have built, the river is very less now. River flow is very less now. Like 3 years ago that I came. The Kasol is developing at a rapid pace. You can go to the other side. The park is so beautiful. This park for the kids, you can just chill here and enjoy. And a lot of activities for the kids to do. Very good. There is the dress, the Himachali dress. You can put and take photos. And that side you can sit and watch the river. Huge trees, deodar trees, and everything looks beautiful, guys, here. So we are chilling here, nothing more, watching our phone. It says it's 1 degree right now, but I think it's 7-8 degrees. I don't know, the watch doesn't. No, it says it's 4 degree right now, and the AQI of here is 1. So the air is the cleanest here. 1 AQI. And just chilling here, nothing more. We'll be walking a little bit in the market and then we go back. Amigos, en la mañana nosotros pedimos una hummus y pita. Hummus, pita. Y una desayuno inglés que viene con frutas, pancitos y huevos. También viene, ¿qué más? La café de mamá. Y por niños, ¿qué pediste para ti? ¿Con Nutella? Sí. Ah, y así es nosotros, ¿cómo puedo decir? La vista de aquí, puedo ver el río. Otro lado es donde caminar la gente. Antes no puedo ir con coches, pero ahora sí. Y así se ve. Guys, second day of our trip. So we are going to Grahan from Kasol. There is one way to go, but it's a little off-roading. So with this car we can go. And the kids are chilling backside, eating chips. We are gone for German bakery to bring some chocolate for the kids. We're gonna take this road. Last time we camped there, so not camping, like we put the chairs and tables and we relax there like a picnic. So the way is beautiful. It's between the forest. We're gonna be going there and chilling there, and then we're gonna come back here for the dinner. Maybe yes, no. We're gonna do one picnic today. Very relaxed day. No, we will not drive so much today. We'll just go from here till there. It's like 5-6 kilometers, and gonna come back. Tomorrow is another day. Tomorrow we will try to find snow. We are here in the way of Grahan, and we just stopped in between, basically not camp. Sitting here with the kids, chilling, we are shooting, watching the river this side, and we are inside the jungle. Do you know what is jungle, Jenny? Selva. Here are the kids just chilling here in middle of the jungle. So
there is a different vibe in the jungle, guys. How I can explain? You just come here, you feel so relaxed, so relaxed, so relaxed. Everything is super relaxed here. Let's keep going more up. तो guys, ये जो जिमनी गाड़ी है ना यार, आप इसको कहीं पर भी लेके चले जाओ. ये देख रहे हो आप, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग तो नहीं है, ऑफ रोडिंग थोड़ी थोड़ी है, बट गाइस गाड़ी जो है ना दाब मानती नहीं है बिल्कुल भी. आराम आराम से उसको जो है, मेरी ऑटोमेटिक वैसे आराम से ऑटोमेटिक में डाल के आराम से पंजा दबाया जो आराम आराम से गाड़ी चली जाती है. गड्ढे गुड्ढे पत्थर वत्थर कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, कोई बड़ा पत्थर हो तो देखने की ज़रूरत है कि नीचे चैम्बर में ना लगे, बाकी भाई कोई भी दिक्कत नहीं है इस गाड़ी के साथ. और ये देख सकते हो, हमने ये रिवर ब्रिज क्रॉसिंग भी कही है. एक लकड़ी का ब्रिज है ये. ग्रहण विलेज जाते समय, जब आप कसोल से ग्रहण की तरफ जाते हो तो ऑलमोस्ट 8 से 10 किलोमीटर का रास्ता है, और आप गाड़ी के साथ ही जा सकते हो, वो भी 4x4. नॉर्मल गाड़ी चढ़ेगी नहीं, नॉर्मल गाड़ी ले जाना रिस्की काम है. तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि भाई आप जो है एक 4x4 गाड़ी लेके जाओ, या फिर पीछे रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी लेके जाओ. नज़ारे बहुत ज़्यादा सुंदर होने वाले हैं इस रास्ते में. आप जहाँ पर भी देखोगे आपको बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिखेंगे. उसके अलावा जो रोड है वो लास्ट में जाके थोड़ी सी डेंजरस होती है, जहाँ से आपको मतलब स्किड वगैरह और थोड़ा कट वगैरह जो है, ज़्यादा टर्न्स वगैरह मिलेंगे और थोड़ी सी लैंडस्लाइड भी मिलेगी. तो यहाँ पर 4x4 गाड़ी ज़रूरत है. जैसे कि मैं यहाँ से बैक कर रहा हूँ गाड़ी, भाई यहाँ इतनी ज़्यादा गाड़ी जान मांग रही है कि भाई आराम आराम से जा, और उसके बावजूद स्लिप मारे, क्योंकि जो रास्ता है वो जो है मडी है. तो वहाँ पर मैं बैक करके लेके भी जा रहा हूँ ना गाड़ी, तो भी गाड़ी जो है हल्का हल्का स्किड मार रही है. तो इस बात का खास ध्यान रखना गाइस कि आप 4x4 या फिर प्रोफेशनल हो तभी गाड़ी इतनी ऊपर लेके जाना, क्योंकि भाई थोड़ा डिफ़िकल्ट है यहाँ गाड़ी वाड़ी बैक करने की भी. जैसे आप देख सकते हो काफ़ी मुश्किल हो रही है. ज़रा सी जगह है गाड़ी बैक करने की. ये जो सामने कैंपर खड़े हैं भाई, मैक्स बोलेरो मैक्स, ये तो भाई सारे के सारे जो है आपको पता ही है भाई प्रोफेशनल है. तो इनसे तो कोई होड़ है नहीं, लेकिन अपनी गाड़ी भाई धीरे 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 ऊपर लेके जाने का भाई. और यहाँ से हम जो है पार्क करके So guys, here parking is a little difficult if you can see, but I managed to go somehow in reverse. There was only this much space that you see up to reverse the car, but till now everything good. I put 4 low and I'm gonna park that side the car. In 4 low the car performs very good, very easy to, and if you can see the car, तो भाई अपनी आंखों से देख लो कैसे स्लिप मारी है गाड़ी. the car is slipping, but I'm gonna park the car right here and I'm gonna put the handbrake now. Gonna go in neutral. If you see, all the cars are like this. There is one more. Only Mahindra Boleros are coming. Little difficult to manage here the things. It's all down. तो गाइस यहाँ पर गाड़ी पार्क करने के बाद मैं और मेरी जो डॉटर है वो ऊपर वॉक करने गए ग्रैंड विलेज तक, देखने कि भाई क्या है क्या नहीं है. और एक डंडी लेके चले गए हम. मेरा जो छोटा बेबी था, जो बॉय है, बेबी बॉय है, वो सो रहा था, तो उसको और मेरी वाइफ को वहीं छोड़ के हम दोनों जो है वॉक करने चले गए, और देखने कि भाई ग्रैंड विलेज है कितनी दूर. मेरी जो डॉटर है उसने काफ़ी साहस दिखाया, और भाई एकदम भागती भागती चढ़ती जा रही थी ऊपर. यहाँ ऊपर पहुँच के आप यहाँ देख सकते हो, ये व्यू है ग्रैंड विलेज का. सामने लेफ़्ट साइड में जो है ग्रैंड विलेज है, और सामने जो है ये फुल स्नो कैप माउंटेन्स है. बहुत सुंदर विलेज लगा मेरे को. और यहाँ हमने कम से कम नहीं तो 10 मिनट चिल करा. और मैं अपनी बेटी से पूछ रहा था भाई कि क्या उसको माउंटेन क्लाइंब करना है या कैसे माउंटेन क्लाइंब करते हैं, उसको सारे इंस्ट्रक्शन दिए. और यही बस बच्चों के साथ किसी डेस्टिनेशन पे पूछ के अच्छा तो लगता ही है. और सामने देखो यार क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है उस तरफ. तो गाइस मस्ट रिकमेंडेड. अगर आपके पास 4x4 कार है तो आप कसोल से यहाँ पर आ सकते हो. ऑब्वियसली आपको जो कार है नीचे खड़ी करके ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स ऊपर चढ़ना पड़ेगा. और मेरे सामने लेफ़्ट साइड में जो है आप ग्रैंड विलेज देख सकते हो. यहाँ पर एक दुर्घटना और घटी गाइस, इसलिए मैं वॉइस ओवर डाल रहा हूँ. क्या हुआ, हमारी ड्रोन जो है वो क्रैश हो गई. हम ड्रोन उड़ा रहे थे. उसके बाद जो है, इसके बाद मैं नीचे गया हूँ और उसके बाद मैंने ड्रोन फ्लाई करी है. और उसके बाद जो है ड्रोन फ्लाई करने के बाद 100 मीटर तक जाती है ड्रोन की हाइट, वहाँ तक गई और ड्रोन जो है क्रैश कर गई एक पेड़ में. नीचे से पेड़ छोटा लग रहा था, लेकिन वो पेड़ ऑलमोस्ट 50 to 60 मीटर हाइट थी, वहाँ जाके गिरी.
बट गाइस देख लो आप नज़ारे चारों तरफ के, एकदम स्नो कैप माउंटेन्स, और कल ही यहाँ पर बर्फ़ गिरी थी तो क्या ही सुंदर लग रहा है गाइस। और यहाँ पर एक मज़े की बात यह है, इस ग्रैंड विलेज में जो है मैंने देखा कि साउथ के बहुत बच्चे हैं। अगर आप वीडियोस भी सर्च करोगे ना यूट्यूब में तो आपको साउथ इंडियन डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर जो है ना वीडियो मिल जाएगी। दैट इज़ वेरी 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 सरप्राइजिंग हेयर इन दिस विलेज कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है साउथ इंडियंस के उसमें। और ये देखो गाइस, यहाँ से ग्रैंड विलेज स्टार्ट होता है, एकदम पीक पे है, और यहाँ से जो है थोड़ा प्लेन प्लेन चालू हो जाता है, जहाँ खेती बाड़ी भी है और एप्पल ऑर्चिड्स हैं। वेरी वेरी ब्यूटीफुल विलेज, आई रियली लाइक इट। एकदम जो है मतलब मन खुश हो गया यहाँ के, एकदम एडवेंचर टाइप हो गया कसौल से, मतलब एकदम आउटिंग भी हो गई। और जैसे कि हम पहले गए पुलगा जो है एक रेगुलर डेस्टिनेशन है और बहुत लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ जो है इरेगुलर डेस्टिनेशन है, तो बहुत कम लोग जाते हैं जिनको पता है कि एक्चुअली में भाई ऊपर की तरफ गाँव भी है। तो यहाँ पर मैं और मेरी डॉटर जो है ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स जो है रेस्ट करके यहाँ से चलने की तैयारी में, और अब हम वापस जाते हुए, अभी यहाँ से नीचे जाके मैंने ड्रोन उड़ाई थी और गाइस ड्रोन गिर गई। वहाँ मैं ऊपर भी चढ़ गया, इस वाले रास्ते से नहीं, ऊपर की तरफ ही गिरी थी ड्रोन एक पेड़ के ऊपर, और मैं इस रास्ते को छोड़ के जो है डायरेक्टली पहाड़ पे चढ़ गया हिमाचलियों के साथ। मैंने बोला भाई यार हेल्प कर दो, ये है वो है, उन्होंने हेल्प भी करने के लिए बंदा भेजा, लेकिन जो ड्रोन है वो इतने ऊंचे पेड़ के अंदर ब्रांचेस के अंदर अटक गया। ना ड्रोन नीचे गिरा ना ऊपर रह गया, पेड़ ही पता लग गया किस में गिरा। पर भाई हमने कम से नहीं तो 15-20 मिनट देखा और ड्रोन नहीं मिला। उसके बाद हार मान के हम जो है नीचे की तरफ आने लग गए। और आप देख सकते हो रास्ता मैंने थोड़ा सा शूट इसलिए करा है ऐसे, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि भाई कितनी ज़्यादा स्लोप है। ये नॉर्मल स्लोप है, और ऑब्वियसली मैंने इसमें जो है गाड़ी में जो है हिल डिसेंट कंट्रोल डाला हुआ है। अदरवाइज हिल डिसेंट कंट्रोल ना भी हो तो भी आराम से उतर जाएगी, बट फॉर अ सेफ्टी साइड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एनी रीज़न हिल डिसेंट कंट्रोल यू शुड यूज़। अगर आपकी गाड़ी में ऑप्शन है कि भाई अच्छे से जो है गाड़ी जो है आराम आराम से जो है धीरे धीरे जाए, तो गैस मज़ा तो बहुत आया ऊपर जाके। अब वापस जाने का समय आ गया है, और मस्ट गो प्लेस है, वेरी ब्यूटीफुल। इसके बाद जो है हमने जो है थोड़ा सा कैंपिंग करने का सोचा है यहीं पर ही रास्ते में, फॉरेस्ट में, रोड पे। देर आर मैनी प्लेसेस लाइक दिस इन हिमाचल गाइस, जो कि आप डिस्कवर कर सकते हो अपनी कार के साथ। अगर आपके पास एक 4x4 कार है तो आप काफ़ी जगह जा सकते हो, जैसे कि हमता पास। उसके अलावा आप जीबी में भी ऊपर जलोरी पास की तरफ भी जा सकते हैं, वहाँ से भी 1-2 गाँव हैं जो कि आप जा सकते हो। तो काफ़ी सारी जगह हैं। उसके बाद जो है हम बच्चों के साथ यहाँ कम से कम नहीं तो 1 घंटा बैठे रहे एकदम रिवर के साइड में और चिल करते रहे, बच्चे और हम सारे के सारे। जैनी जो है कैमरा के लिए पोज कर रही है, और वो रही हमारी गाड़ी जिप्सी शिवा। तो गाइस ये है रिवर, ये है ब्रिज जिस पे मैंने आपको पहले दिखाया वीडियो के अंदर, जहाँ से हम गाड़ी क्रॉस कर रहे थे। और यहाँ से हम ऑलमोस्ट जो है 6-7 बज गए हैं शाम के, और यहाँ से जो है हम जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखने कसौल के मेन चौक पे एक कैफ़े का नाम मेरे को याद नहीं, बट गाइस का कैफ़े बना रखा है, मतलब कि गुड़गांव जैसा कैफ़े बना रखा है 1 नंबर का। और अब भाई वो कसौल वो वाला कसौल नहीं रहा, फॉरेनर्स वाला है। यहाँ सब इंडियन पीपल मिलेंगे आपको, सारी इंडियन लग्जरी मिलेगी। लोग यहाँ चिल कर रहे हैं, अपना ड्रिंक कर रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, और उसके अलावा जो है मैच चल रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। देख के मज़ा आ गया। उसके बाद जो है हम सुबह जो है मनाली की तरफ निकल गए। जब मनाली की तरफ निकले तो हम एक ढाबे पे रुके गाइस, इतना बढ़िया ढाबा था, इतना रीज़नेबल प्राइस, और मज़ा ही आ गया यार खाना खा के। उसके बाद हमने जो है अराउंड 2-2:30 हम होटल पहुँचे, होटल में चेक इन करा। होटल बड़े सस्ते हो रखे यार मनाली में, ऑफ सीज़न जाओ तो मेरे को बस 800 रुपये में विद ब्रेकफास्ट जो है होटल मिला। 800 भी नहीं, ऑलमोस्ट 1000 रुपये टैक्स वगैरह लगा के 2000 रुपये नाइट का। और अब हम जा रहे हैं मन्नू टेम्पल की तरफ। होटल में चेक इन करने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स करा, उसके बाद जो है हम मन्नू टेम्पल की तरफ निकल गए शाम को, क्योंकि कुछ करने के लिए था नहीं इतना कुछ। नेक्स्ट डे हमारे को जो है कल जो है हम जो है ऑलमोस्ट वहाँ जाने की सोच रहे हैं, अटल टनल और सिस्सू ये वो। तो हमने सोचा आज थोड़ा सा ओल्ड मनाली जाते हैं, ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हम पहले नहीं गए बिकॉज ऑफ द कार। तो आज गाड़ी है तो गाइस हम मन्नू टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। पहले भी वहाँ मन्नू टेम्पल के ऊपर भी गाड़ी जाती है, बट कॉन्फिडेंस नहीं होता जब तक गाड़ी वैसी ना हो ना, और एक 7 सीटर गाड़ी अर्टिगा लेके जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मन्नू टेम्पल वाकई में बहुत सुंदर है, यहाँ से जो व्यू है पूरे मनाली का बहुत ज़्यादा सुंदर है। काफ़ी एंशिएंट टेम्पल है जैसे कि आप देख सकते हो, और काफ़ी आपको जो है ट्राइबल इसमें जो है एसेंस मिलेगा आपको। तो हिमाचल में देवता के बाद जो आपको ट्राइबल एसेंस है वो काफ़ी जगह मिलेगा, और जो हिमाचली कल्चर है दैट इज़ वेरी डीप रूटेड, वेरी ब्यूटीफुल कल्चर। अगर आपको देवता मौका मिले देखने का तो ज़रूर देखिएगा।
Mira, aquí está dando vueltas, Santiago. Aquí está dando vuelta, mira. Guys, look at this view from Manali. We reached Manali, guys, today in the afternoon. We did like 2 hours trip and we reached Manali. We checked into a hotel and then we come to Old Manali, guys. Here from Old Manali is the view. The valley view of Manali looks beautiful. You can see till the end, and that side the sunset is happening. So somewhere there, and look how beautiful it looks. Looks really beautiful. First time coming up till the end in Old Manali, and you can see I have the view of all the Manali from here. From the starting, that side is the starting, and that side is the road going for Rohtang. If you can see this road. Amigos, nos vamos para los montañas. गाइस वहाँ रोक के कैफे पे खाना खा के अच्छा खाना है वहाँ का. नेक्स्ट डे हम सुबह सुबह जो है 8 बजे अटल टनल की तरफ निकल लेते हैं. क्यों निकल लेते हैं गाइस? बिकॉज मेरे दोस्त का फ़ोन आया, बोल रहा भाई 8 बजे के पहले सोलांग को क्रॉस कर देना वरना ट्रैफिक में खड़े रहोगे. और भाई सच बात थी वो. बताऊंगा कैसे इस वीडियो में आखिरी तक कि भाई क्यों जल्दी निकलने का फ़ायदा है. सुबह सुबह हम 7:30-8 बजे तक निकल गए थे ब्रेकफास्ट करके होटल में. और ये बच्चों के लिए शूज़ यहाँ से रेंट पे लिए हैं 100 रुपये पर पेयर. तो 200 रुपये आई गेस 100 रुपये दे थे या 200 रुपये 2 पेयर के, मेरे को याद नहीं. और यहाँ पर हमने बोला जी आते हुए ड्रॉप कर देंगे. कुछ उन्होंने सिक्योरिटी वगैरह नहीं मांगा, 200 रुपये दिए, बस फ़ोन नंबर मांगा और हम निकल गए आगे की तरफ. आगे की तरफ जब हम जा रहे थे तो गाइस ऑब्वियसली स्नो दिखनी शुरू हो गई. और ये आप देख सकते हो सोलांग वैली का हाल. ये जो तारीख है ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 21-22 फरवरी है. बट आज भी बोल रहे हैं कि भाई मनाली का हाल ऐसे ही है. ऊपर साइड ऊपर हाइट पे बर्फ़ गिरी हुई है. और ये देख लो गाइस, यहाँ पर आप इतनी सारी 4x4 गाड़ियाँ इसलिए देख रहे हो क्योंकि इस पॉइंट के आगे 4x2 गाड़ी अलाउड नहीं है. 2 व्हील ड्राइव अलाउड नहीं है, खाली 4x4 या फिर हिमाचल प्रदेश रजिस्ट्रेशन ही अलाउड है जो कि एक्सपीरियंस ड्राइवर है. चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़ गाइस. इतनी बर्फ़ मैंने देखी तो है अपना बारालाचा पास पे, बट यहाँ पर जो है काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक बर्फ़ पड़ती हुई देखी क्योंकि हमने बस बारालाचा पास हम मई जून में गए थे. तो गाइस ये देख के मज़ा आ गया कि भाई चारों तरफ जो है बर्फ़ ही बर्फ़ है. और काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी. कई जगह तो मतलब 4-4 फुट बर्फ़ थी. रोड क्लियर था बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ से जो है पूरे दिन जो है गाड़ियाँ आती जाती रहती है टूरिस्ट की. ये हम पहुँच गए अटल टनल. और अटल टनल पहुँचने के बाद ये आ गया आपका अटल टनल नॉर्थ पोर्टल. और गाइस व्यू आप खुद ही देख लो अपनी आंखों से कि भाई कैसा व्यू है. नीचे हमने जाके थोड़ा सा टूरिस्ट की तरह एंजॉय करा. उसके बाद हम सिस्सू की तरफ चले गए. सिस्सू की तरफ क्यों गए? क्योंकि हमारे को जो है सिस्सू वाटरफॉल देखनी थी. और मेरी वाइफ जो है अपने चैनल के लिए व्लॉग कर रही है, इसलिए मैंने जो है वॉइस ओवर डाला है स्पेनिश में. हम जस्ट कुछ बता रहे हैं कि भाई क्या मज़े आए, कैसे आए, क्या करा क्या नहीं करा. और भाई ऑब्वियसली इतना ज़्यादा वाइट हो रखा है और सनलाइट है नहीं, ऊपर क्लाउड्स हैं तो भी आंखें जो है ना चुंधिया रही है गाइस. पूरी आंखें नहीं खुल रही है. मेरी तो वैसे भी नेपाली जैसी आंखें आप देख ही सकते हो. और आंखें नहीं खुल रही है बिकॉज ऑफ द सन. हमने यहाँ कम से कम नहीं तो 1-1.5 घंटा चिल करा अपना अटल टनल के बाद. और गाड़ी में बच्चे बाहर गए थे बट इतने हाई अल्टीट्यूड में जैसे वो एक्सर्शन करते हैं ना गाइस तो बच्चों की सांस ही फूल जाती है. और ये देखो गाइस, ये है सिस्सू वाटरफॉल आपके सामने एकदम फ्रोज़न. और चारों तरफ जो है बर्फ़ है. नीचे जो रिवर भी हो ऑलमोस्ट फ्रीज़ है. थोड़ी नदी बह रही है बट इट लुक्स कम्प्लीटली अ डिफरेंट प्लेस इन विंटर्स. नॉट इन विंटर्स बेसिकली वेन एवर देयर इज स्नोफॉल. और ये देखो गाइस एकदम शिवलिंग टाइप बना हुआ है वहाँ पर एक. और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है. एनीवे सिस्सू जो है सर्दियों में क्लोज हो जाता है. सिस्सू लाहौल स्पीति बिकॉज स्पीति आई डोंट नो बट लाहौल और सिस्सू क्लोज हो जाता है सर्दियों में अराउंड जनवरी-फरवरी बिकॉज ऑफ देयर रूरल ट्राइबल फेस्टिवल इन दिस प्लेसेस. तो आपको बहुत सेलेक्टेड जगह मिलेगी होम स्टे की या फिर स्टे की होटल की. वरना आपको जो है पहले ही मनाली से रुक के आपको आगे जाना पड़ेगा. और गाइस नज़ारे देख लो आप, क्या ही नज़ारे हैं पूरे के पूरी वैली के. तो गाइस नेक्स्ट टाइम मैं अपने पेरेंट्स को लेके आ रहा हूँ. मेरे पेरेंट्स जो है कभी मनाली की साइड नहीं गए तो मेरे को पेरेंट्स को एक बार दिखानी है गाइस ये ब्यूटी. क्योंकि मनाली वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस है इंडिया में.
और यहाँ जाके ना हमेशा दिल खुश होता है गाइस। इतनी बड़ी वैली, इतना सुंदर सुंदर पहाड़, इतनी सारी नेचर, और नेचर भी एक्सट्रीम नेचर, जहाँ पर आप देख सकते हो कि बादल भी फट सकते हैं, पूरे एवेलेंचेस भी आ सकते हैं, सब कुछ फ्रीज भी हो सकता है। तो ये नेचर जो है मनाली के ऊपर की क्रेज़ी नेचर है। आप इसको हल्के में मत लेना, हमेशा प्रिकॉशन लेके चलना, वेदर अपडेट्स लेके चलना, न्यूज़ अपडेट लेके चलना, क्योंकि यहाँ नहीं पता भाई कब बादल फटेगा, कब एवलांच आएगा, कब एकदम रोडें बंद हो जाएगी, कब लैंडस्लाइड आएगा। तो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और भाई ये रही हमारी जिमनी। भाई जिमनी भी कमाल की गाड़ी है, इसने हमारे को ऊपर तक पहुँचा दिया। जहाँ मन करे वहाँ चले जाओ। और ये बर्फ़ के ऊपर भी ऐसे चढ़ रही थी। यहाँ हमने जहाँ पार्क कर रखे जैसे कि आपने देखा, वहाँ गाइस बर्फ़ के ऊपर भी ऐसे चढ़ी। इस तरफ जो है आप मेरे सामने देख सकते हो, ये है जो है सिस्सू विलेज की स्टार्टिंग है। और यहाँ पर आपको जो है होटल, होम स्टे वगैरह मिल सकते हैं। उसके अलावा जो है आपको जो है खाने पीने की भी चीज़ें, रिफ़्रेशमेंट वगैरह भी मिल जाएगी। इसके ऊपर अगर आप चलते रहोगे तो 30-35 किलोमीटर बाद जो है लाहौल आ जाएगा। लाहौल में केलोंग, लाहौल तो पूरा ही है एक ये डिस्ट्रिक्ट, बट केलोंग आ जाएगा। केलोंग के आगे आप बारालाचा पास भी जा सकते हो। और ये देखो गाइस, सामने जिमनी खड़ी है, दोनों जिमनी बर्फ़ के एकदम ऊपर खड़ी है, रोड के साइड में खड़ी है, रोड के ऊपर नहीं खड़ी है। तो आप देख सकते हो कितनी स्टेबिलिटी है। 4 हाई में ही ऊपर चढ़ा दी गाड़ी आराम से। क्यों चढ़ाई गाइस? वो वाटरफॉल देखने के लिए चढ़ाई। अब आपको पूरा व्यू आ रहा होगा गाइस वाटरफॉल का, पूरे बैकड्रॉप का, जबकि मैं आपको पूरी वीडियो में बता रहा हूँ कि भाई कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा। तो भाई एक नंबर लग रहा है। और भाई जिमनी देख लो आप, क्या ही कमाल है जिमनी के। ये साइड भी एक वन ऑफ द वाटरफॉल जो है, पहले मनाली जाते हुए अपनी ओट टनल के पास वाटरफॉल आती थी, वो ड्रीम्स में आती थी। अब ये ड्रीम्स में आने लग गई है। रोड जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, ऊपर तक आप काफ़ी जल्दी इस टनल के उससे पहुंच सकते हो, माध्यम से पहुंच सकते हो। और भाई जिमनी तो यहाँ कह ठा रखा है, जगह जगह जिमनी जिमनी है ऊपर मनाली में। जितनी थार मेरे को गुड़गांव में दिखे ना भाई, उतनी थार मेरे को पूरे ऑल ओवर इंडिया नहीं दिखी चलती हुई। भाई गुड़गांव में लोग पागलों की तरह थार खरीद रहे हैं। और ये देख लो गाइस, स्नो स्नो और स्नो। इसके बाद गाइस हम 1-1.5 घंटा अपना थोड़ा ट्रैवल करके वापस जान लग गए। तो गाइस फीलिंग अलग है, मतलब मनाली आना और यहाँ तक आना, मतलब एक नंबर का मज़ा। वापस जाने लग गए। ये हमारा नॉर्थ पोर्टल है, इस तरफ आप देख सकते हो। नॉर्थ पोर्टल पे अब जो है पहले की तरह इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं रुकती, रुकने नहीं देते। कुछ जो सिलेक्टेड बंदे हैं वहीं के ही बंदे हैं, या फिर आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी तो ही रुकने देंगे। और शाम को भाई खाना खाने के लिए वापस आए, रूम में चिल करा। शाम को बस थोड़ा सा ही खाना लेने गया था मैं, और इतनी देर में भाई बारिश हो गई। पर यहाँ पर एक जगह है अपने जस्ट बस स्टैंड के थोड़ी सी आगे जाके, जहाँ पर आपको पिज़्ज़ा हट और आपको ये सब KFC और बारिस्ता वगैरह मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं कुछ खाना पैक करवाने लेके गया था। ये रहा द फूड स्ट्रीट, कोस्टा कॉफ़ी वगैरह। और उसके बाद हम घर की तरफ निकल पड़े। ये जो है, ये बारिश आप देख रहे हो, ये उसी रात जो है शुरू हुई थी, जिसके बाद आपने देखा कि 25 मार्च के आसपास, नहीं 27 फरवरी के आसपास लोग फंस गए थे। आपने देखा नदियाँ बनी पड़ी है। ये उसी रात को बारिश हो रही थी भाई। मैं सोया हूँ और उठा हूँ तो ऊपर जो पहाड़ थे वहाँ बर्फ़ आ गई थी, पर मेरे होटल तक बर्फ़ नहीं आई थी। लेकिन हमारे को वापस जाना था, कोई ऑर्डर आ रखा था टी-शर्ट्स का, तो हम निकल गए। और देख सकते हो आप कि भाई कैसा ही मौसम है। धीरे धीरे गए तो हम आगे, धूप आ गई। धूप आने के बाद भाई गाड़ी में देखा कि पंचर। अगर आप पूरी वीडियो ध्यान से देखोगे तो गाड़ी का एक टायर जो है लो टायर प्रेशर है, और ये रहा पंचर गाइस, ये गया पंचर बार। Thanks for watching my video guys. Keep watching, keep subscribing. I hope you like this video. Comment in the section you like Hindi more or English more.